أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي دارالایمان ڈیجیٹل اسلامک سینٹر کی جانب سے میں آپ سب بہنوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں اور ہمیں حق بات کہنے کرنے اور سمجھنے کی توفیق دیں، اور باطل سے ہمیں دور رکھیں اور اس کے خلاف ہمارے دل میں نفرت پیدا کر دیں۔ آج کے درس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، تو تلاوت کے لیے میں دعوت دیتی ہوں پیاری بیٹی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. اللہ نے کسی شخص کے دھڑ میں دو دل نہیں رکھے ہیں، نہ اس نے تم لوگوں کی ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری ماں بنا دیا، اور نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا ہے۔ یہ تو وہ باتیں ہیں جو تم لوگ اپنے منہ سے نکال دیتے ہو، مگر اللہ وہ بات کہتا ہے جو مبنی بر حقیقت ہے، اور وہ صحیح طریقے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے، اور اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی اور رفیق ہیں۔ نادانستہ جو بات تم کہو اس کے لیے تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، لیکن اس بات پر ضرور گرفت ہے جس کا تم دل سے ارادہ کرو۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم۔ میں ترانے کے لیے دعوت دوں گی ہماری ہونہار بیٹی۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے،
मगर तुझको अंधा किया रंग-बू ने। कभी गौर से भी देखा है तूने, जो मैमूर थे वो महल अब है सूने। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। मिले खाक में अहल शां कैसे कैसे, मकी हो गई लामकां कैसे कैसे। हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, ज़मीं खा गई नौजवां कैसे कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। अजल ने न कसरा ही छोड़ा न दारा, इसी से सिकंदर फातेह बिहारा। हर एक छोड़ के क्या हसरस धारा, पड़ा रह गया सब यही खाट सारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। तुझे पहले बचपन में बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया। बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया। बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। अब हम चलते हैं आज की हदीस की तरफ। सही बुखारी की हदीस है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान मुसलमान का भाई है, लिहाजा ना वो इस पर जुल्म करे और ना ही उसे जुल्म के हवाले करे। जो शख्स अपने भाई की हाजत रवाई में मसरूफ होता है,
تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی فرماتا ہے۔ اور جو شخص کسی مسلمان کی مصیبت کو دور کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اس کی مصیبت کو دور کرے گا، اور جو شخص مسلمان کا عیب چھپائے گا قیامت کے دن اللہ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کی جو ہم سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ان پر عمل کی توفیق دیں کہ ہم اپنے مسلمان بھائی پر نہ تو ظلم کریں اور نہ ہی اسے ظلم کے حوالے کریں۔ جہاں پہ ہم دیکھیں کہ کوئی اس طرح کا کوئی کام ہو رہا ہے تو ہم اس کی مدد کریں اور اپنے مسلمان بھائیوں کی حاجت روائی کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں ہم پر حقوق العباد فرض کیے ہیں وہیں ہمارے لیے حقوق اللہ، ظاہر ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں ہی ہمارے لیے ضروری ہیں۔ حقوق اللہ کو بجا لانا تو ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، ہمارا پالنہار ہے، ہمارا پروردگار ہے، تو اس کے احکامات کو بجا لانا، اس کے حقوق کو بجا لانا ضروری ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی ہمارے اوپر اسی طرح سے فرض ہیں، کیونکہ قیامت کے دن وہ جس کے ذمے مطلب ہمارے ذمے جس کا حق رہ گیا، وہ ہم اگر اس سے وہ معاف نہیں کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ بھی اس کو معاف نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کریں کہ ہم سب کے حقوق جو ہیں وہ پورے کرنے کی کوشش کریں۔ اسی چیز کو کہ مسلمان جو ہے وہ مسلمان کے لیے کس طرح سے ایک کہہ لیں کہ نرم دل رکھتا ہے، کس طرح سے اس کے حقوق پورے کرتا ہے۔ علامہ اقبال نے اپنے شعر میں کہا تھا کہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزمی حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، کہ جب وہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں میں ہے تو وہ ان کے لیے ریشم کی طرح سے نرم ہوگا، اور اگر اس کا باطل کے ساتھ مقابلہ ہوگا تو وہ فولاد کی طرح سخت ہوگا۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اگر اخروی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے اپنے مسلمان بھائیوں کے حقوق پورے کریں۔ اور اگر ہم دیکھیں تو ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اس کی بڑی مثالیں ملتی ہیں، کہ جیسے ہجرت مدینہ کے موقع پر انصار و مہاجرین کے درمیان جو رشتہ قائم ہوا تھا، تو وہ رشتہ کس بنیاد پر تھا؟ ان کے درمیان کوئی خون کا رشتہ نہیں تھا، ان کے درمیان کوئی اس طرح کے تعلقات نہیں تھے کہ وہ برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں، لیکن اس نے ایک اسلام نے ایک دین کی وہ محبت جو ہے وہ اس نے ان سب کو اکٹھا کر دیا، اور وہ رشتہ اس وقت قائم ہوا کہ لوگوں نے اپنے اپنے مال میں، اپنی ہر چیز میں ان کو، انصار نے مہاجرین کو اپنا ساتھی بنایا۔ تو اگر ہم دیکھیں تو اس طرح کی بے شمار مثالیں ہمیں ملتی ہیں اپنی ہسٹری میں، تو ہمیں ان مثالوں سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے درمیان اب جو آج کل کے حالات چل رہے ہیں کہ یہ چیز ہمارے اندر سے ختم ہو گئی ہے کہ ہم دوسروں کے حقوق کو پورا کریں۔ آج کل ہر بندہ اپنے حق کی بات کرتا ہے، جب ہم دوسروں کے حقوق پورے کریں گے تو ہمیں ہمارے حقوق از خود مل جائیں گے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی مومن سے دنیا کی کوئی تکلیف دور کی تو اللہ اس سے قیامت کے دن کی کوئی تکلیف دور فرما دے گا۔ جس شخص نے کسی تنگ دست پر آسانی کی تو اللہ اس پر دنیا و آخرت میں آسانی فرمائے گا۔ جس نے کسی مسلمان کی عیب پوشی کی تو اللہ اس کی دنیا و آخرت میں عیب پوشی فرمائے گا۔ اللہ بندے کی مدد فرماتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے سیکھیں۔ اب قرآن سے، حدیث سے ہمیں جو چیزیں ملتی ہیں، وہ جو احکامات ہمیں ملتے ہیں، جو ہمیں سنت ملتی ہے، جو ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مثالیں ملتی ہیں، تو جب تک ہم اسے اپنی زندگی میں اس پر عمل نہیں کریں گے ہم کس طرح سے کامیابی حاصل کریں گے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں جن سے میں تعلق جوڑتا ہوں اور وہ مجھ سے تعلق توڑتے ہیں، میں ان سے نیکی کرتا ہوں اور وہ مجھ سے برائی کرتے ہیں، میں ان سے بردباری کرتا ہوں اور وہ مجھ سے بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تو واقعی ایسا ہی ہے جیسا کہ تم نے کہا ہے تو جب تک تو ایسا کرتا رہے گا اللہ کی طرف سے ایک مددگار ان کے مقابلے میں تیرے ساتھ رہے گا۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں
बुराई के बदले में भी नेकी करने की तौफीक दें। अल्लाह ताला हमें इतना ज़र्फ दें कि हम लोगों की गलतियों को, कोताहियों को माफ़ करना सीखें। अल्लाह ताला हमें इतनी तौफीक दें कि हम दूसरों के साथ हुस्न सलूक से पेश आएँ। अल्लाह ताला हमें तौफीक दें कि हम इन तमाम बातों पर अमल करें। जैसे कुरान की जो हमारी सूरह अहज़ाब की हमने आज आयात सुनी, उनकी तफसीर ने जितनी खूबसूरत माशाल्लाह तिलावत की, और जो ट्रांसलेशन आपने सुनी आयत नंबर 4 और 5 सूरह अल-अहज़ाब, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसमें देखा जिस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने किसी आदमी के अंदर उसके दो दिल नहीं बनाए हैं, ना ही तुम्हारी उन बीवियों को जिनसे तुम जिहार करते हो तुम्हारी माएं बनाया है, और ना ही तुम्हारे मुंह बोले बेटों को तुम्हारे हकीकी बेटे बनाया है। तो ये तुम्हारे मुंह की बातें हैं, मगर अल्लाह हकीकी बात कहता है और वो सही राह दिखाता है। अब यहाँ पे हमें ये समझने की जरूरत है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये जो मिसाल दी है कि किसी भी इंसान के दिल में दो दिल नहीं है, या उसके सीने में दो दिल नहीं है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इससे हमें क्या बताना चाहते हैं। तो बुनियादी तौर पर जो बात है वो ये इस्लाम दीन से पहले का जो टाइम था उसमें दो चीजें बहुत कॉमन थी। एक तो ये कि ताल्लुक बनाना, रिश्ता बनाना बहुत एक्सट्रीम मोहब्बत के नतीजे में और एक्सट्रीम नफरत के नतीजे में, और ये दोनों जो थे रिवायात कह लें आप, या जो तरीके थे, या ये जो दोनों आदात थी, ये दोनों इस आयत मुबारका में हमें समझने को मिलती हैं। वो किस तरह से? पहला ये कि यानी जो मर्द अपनी बीवियों को इंतहाई गुस्से की हालत में ये कह देते थे कि तुम्हारी बीच जो है वो हमारी माँ की तरह है, यानी तुम हम पे हराम हो, ऐसे ही जैसे हमारी माँ तुम हमारे ऊपर हराम है। तो बिल्कुल इसी तरह से क्या कि जो दूसरी चीज आउट ऑफ लव और बहुत ज्यादा मोहब्बत के नतीजे में जो एक रिश्ता बनाना था, और वो था कि मुंह बोले बेटे बना लेना। तो ये बहुत ज्यादा मतलब एक प्रैक्टिस थी। और खैर ये प्रैक्टिस जो खास तौर पर मुंह बोले बेटे बना देना, मतलब माँ बना लेना, बेटा बना लेना, बेटी बना लेना, ये चीजें तो खैर अभी भी सोसाइटी में उसी तरह से मौजूद हैं जिस तरह से ये दीन से इस्लाम से पहले भी मौजूद थी। तो जब दो दिलों की बात हुई कि दो दिल नहीं हो सकते, तो इससे एक मुराद ये ली जाती है कि जब अल्लाह ताला ने इंसानों के दिल, इंसानों के लिए का एक ही दिल बनाया है, वो दो दिल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि दो मुतजाद चीजें जो हैं वो हकीकत नहीं हो सकती, हकीकत एक ही होगी। तो इसी तरह से ये भी मुमकिन नहीं है कि एक ही शख्स वो बैक वक्त मोमिन भी हो, मुनाफिक भी हो, या वो काफिर हो, या वो मुस्लिम हो, या ये है कि वो यानी मुनाफिक होगा तो वो यकीनन फिर वो दीन पे बज़ाहिर तो अमल कर रहा है, लेकिन असल में वो मुनाफिक ही होगा। फिर इसी तरह से जो मोमिन है वो फिर मुनाफिक नहीं हो सकता। तो यानी यहाँ पे जो बुनियादी बात कही जा रही है वो ये कि जो इंसान जो है वो यानी हकीकत जो है वो एक ही है, और वो ये कि या वो मोमिन है या वो फिर मोमिन नहीं है। तो यहाँ पे भी इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ये बता रहे हैं कि जो माँ है तुम्हारी वो एक ही है। यानी आ, किसी को माँ कह देने से ये बात साबित नहीं हो जाती कि वो तुम्हारी माँ है। क्योंकि हम अगर ये देखें, ये जो जिहार का दस्तूर था ये यही था कि चूंकि वहां पे अरब में उस वक्त जो है वो तलाक के अलावा भी ये था तलाक, हालांकि उस वक्त भी जो है वो एक उस तरह से यानी एक जायज अमल है, लेकिन नापसंदीदा है। यानी इंतहाई मुश्किल की हालत में ये मतलब हो सकती है। लेकिन ये है कि क्या होता था कि जब भी औरत पर गुस्सा आता, उनसे कोई यानी अनबन हो जाती, तो उनको ये कह दिया करते थे कि तुम जो है वो मेरे लिए ऐसे ही हो कि जैसे मेरी माँ। तो ये होता था कि इससे फिर वो औरत जो है वो खामद पर हराम हो जाती थी। और हम ये देखते हैं कि इस हवाले से सूरह अल मुजादिला की आयत नंबर 2 to 4 में इसके हवाले से काफी डिटेल मौजूद है। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस दस्तूर के लिए जो पहली कानून साजी जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो आयात नाजिल की, वो जब हजरत खौला के साथ ये मामला हुआ, तो वो उस वक्त ये बात हुई
اور اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور یہ واقعہ جو ہے یہ کچھ اس طرح سے تھا کہ جب حضرت خولہ جو ہیں یعنی یہ واقعہ جو ہے وہ اوس بن صامت انصاری کا ہے، اور یہ جب ان کی بیوی خولہ کی فریاد انہوں نے کی اللہ تعالیٰ سے، اور اس کا جو تفصیل محدثین ہمیں بتاتے ہیں وہ اس طرح سے ہے کہ حضرت اوس بن صامت جو تھے وہ تھوڑے چڑچڑے ہو گئے تھے، اور اس میں پھر غصے کی حالت میں انہوں نے اپنی بیوی کو جو ہے وہ زہار کا اس طرح سے انہوں نے کہا۔ لیکن اسلام کے آنے کے بعد یہ پہلا موقع تھا ان کے لیے کہ وہ جب بیوی سے لڑ کے انہوں نے پھر یہ حرکت کی، تو ان کی اہلیہ جو تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور انہوں نے سارا قصہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا۔ تو رسول اللہ کو انہوں نے یہی کہا کہ بھی میری اور میرے بچوں کی زندگی جو ہے وہ تباہ ہونے لگی ہے، اور میرا خاوند بھی جو ہے وہ ظاہر ہے عمر کے حصے میں ہے کہ ان کو اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تو جو مفسرین بتاتے ہیں وہ یہ کہ اس وقت تک جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی بتایا تھا کہ ابھی اس حوالے سے ان کے اوپر کوئی حکم جو ہے یا کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ تو اس کے بعد وہ پھر ظاہر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ارشاد انہوں نے مطلب فریاد وہ کرنے لگی، اور پھر اس کے بعد جو ہے جب یہ وحی نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ ان بتایا گیا کہ اس کی جو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ تھا کہ ظاہر ہے وہ حرام ہو گئی تھی، اور پھر ان کے لیے لازم یہ تھا کہ وہ دوبارہ رجوع کرنے سے پہلے یا تو یہ کہ وہ ایک غلام آزاد کریں گے، اور یہ سیکوینس میں ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یعنی ان کے لیے جو ارشاد فرمایا کہ یا تو یہ ہے کہ وہ پہلے جو ہے وہ ایک غلام آزاد کریں، جب انہوں نے پھر اگر وہ اس قابل نہ ہو، اور انہوں نے بھی حضرت خولہ نے بھی جب اس سے معذوری ظاہر کی، تو فرمایا گیا کہ پھر یا پھر آپ یہ کہ 2 مہینے کے وہ لگاتار روزے رکھیں گے۔ تو انہوں نے پھر حضرت خولہ نے عرض کیا کہ اوس کا تو یہ حال ہے کہ وہ دن میں اگر 2-3 مرتبہ نہیں کھائیں تو ان کی بینائی جواب دینے لگتی ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر آپ 60 مسکینوں کو کھانا دیں گے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ وہ تو اس کی بھی قدرت نہیں رکھتے سوائے یہ کہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدد فرمائیں، تو تبھی یہ ممکن ہے کہ وہ دوبارہ رجوع کر سکتے ہیں حضرت خولہ سے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اتنی مقدار میں جو ہے وہ خوراک عطا فرمائی کہ جو 60 آدمیوں کے 2 وقت کی غذا کے لیے کافی ہو، یعنی یہ ہے کہ اس کے جو 3 آپ سمجھ لیجئے کہ رجوع کرنے سے پہلے جو ان سے کہا گیا کہ یا تو یہ ہے کہ وہ ایک غلام آزاد کرے، یا یہ ہے کہ وہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے، اور یہ کہ اگر وہ پھر یہ بھی نہ کر سکے تو پھر 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی مدد فرمائی، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ پھر ممکن ہو پایا کہ وہ ان سے جو ہے وہ حضرت خولہ جو ہے وہ انہوں نے اپنے شوہر کی طرف پھر وہ کفارہ انہوں نے پھر ادا کیا، اور اس کے بعد اس کے علاوہ بھی زہار کے جو ہے عرب کے اس ٹائم میں یعنی عرب کی ہسٹری میں اور بھی بہت سارے مطلب واقعات جو ہے وہ ملتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہی تھا کہ اگر یہ لفظ منہ سے نکل گیا ہے اور اس طرح سے یہ بات کہہ دی ہے ہسبینڈ نے اپنے وائف کو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بات جو ہے وہ یعنی لازم ہو جائے اس کے اوپر کہ وہ اس کو اسی طرح سے کرے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا حق بات وہی ہے، یہ کہ یہ یعنی ان کے منہ کی باتیں ہیں کہ وہ اپنی بیوی کو جب بھی چاہے ماں کہہ دے اور جب بھی چاہے وہ بیوی بنا لے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ حرکت جو ہے وہ اسلام قبول کرنے سے پہلے تو لوگ کیا کرتے تھے، لیکن ایسا ممکن نہیں کہ جب دین کو سمجھ لیں اور دین کو قبول کر لیں، اسلام کو قبول کریں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس طرح کی پریکٹسز جو ہے وہ کوئی کرے۔ تو یعنی یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ جب بھی چاہیں اپنی یعنی تم اپنی بیوی کو ماں کہہ دو تو اسے واقعی جو ہے وہ پھر ماں سمجھو، تو اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ جو حقیقی بیٹا ہے اس کا مقام کوئی اور لے سکتا ہے، یعنی یہ ہے کہ کسی کو
ये कह देना, उसको अडॉप्ट कर लेना। जैसे अभी इस वक्त में भी आप देखें तो आपको नजर आता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसा करते हैं कि मतलब अडॉप्ट कर लेते हैं बच्चे और उसके बाद फिर उनको अपना नाम देते हैं। तो यानी हमें ये बात समझनी चाहिए, ज़िहार के हवाले से भी हमें ये बात क्लियर हो गई कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यही इरशाद फरमाया है कि तुम्हारे कहने से जो है वो तुम्हारी बीवी माँ नहीं बन जाती, माँ वही है जिसने तुम्हें जना है। क्योंकि इंसान के दिल में कभी भी जो है वो दो दिल नहीं जिस तरह हो सकते, इसी तरह से किसी की दो माएं भी नहीं हो सकती। तो अब अगर तुम अपनी बीवी को माँ कह दो तो तुम और ये समझो कि वो तुम्हारी माँ हो जाएगी, तो ऐसा ऐसी किसी भी चीज का हकीकत से जो है वो कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि अगर कोई इंसान जो है वो मतलब घर में यानी अलल ऐलान ना भी करे और चुपके से बीवी के साथ इस तरह से जिहार कर बैठे और फिर कफारा भी उसका अदा ना करे, तो जैसे कि हमने कफारे के हवाले से 3 जो है वो कंडीशंस डिस्कस की, तो अगर उसके बगैर जो है वो अपना ताल्लुक रिस्टोर करता है, तो वो अगर वो ये समझता है कि दुनिया को खबर नहीं तो इसका मतलब है कि वो बच जाएगा, तो दुनिया को खबर होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ेगा। असल बात तो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के मुआवजे से वो कैसे बचेगा। तो ये है कि ये चीजें जो हैं, जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं ना कि ये तिलका हुदूदुल्लाह, कि ये अल्लाह ताला की हदूद है, तो इनको समझना और इनसे बचना और इनसे तजावुज करना अल्लाह सुब्हानहू तआला इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं फरमाते। तो ये है कि जो जाहिलियत की चीजें थी वो अभी उनको दीन के आने के बाद उनको कंटिन्यू करना, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये इस आयत मुबारका में इरशाद फरमाया है ना कि ये तुम्हारे मुंह की बातें हैं, वो जो अल्लाह कहता है वही हक है और वही सीधा रास्ता दिखाता है, वही सीधी राह दिखाता है। तो ये कि सीधी राह क्या है कि इंसान जो है वो हक पे रहे, अपनी बीवी को माँ कह देने से वो उसकी माँ नहीं हो जाती। उसने जो अल्लाह का बनाया हुआ कानून है उसने उसी के ऊपर अमल करना है और अल्लाह ताला की हदूद की हिफाजत करनी है। फिर इसी तरह से अल्लाह ताला की हदूद की हिफाजत उसने और किस तरह से करनी है दुनिया की जिंदगी के और बहुत सारे मामलात में भी, लेकिन खास तौर पर इस आयत की रोशनी में, कि अगर वो किसी को अपना बनाता है तो फिर ये है कि वो उसके अपने बाप के नाम के साथ जो है वो उसको, जैसे मतलब अभी इस वक्त भी जो है अडॉप्शन का बहुत ज्यादा जो है वो है, तो ये है कि अगर वो किसी की सरपरस्ती करना चाहता है, किसी के साथ मोहब्बत का ये रिश्ता रखना चाहता है औलाद की तरह, तो ये है कि उसको उसके बाप के साथ या उसके बाप के नाम के साथ जो है वो उसको अपनाए। ऐसा ना हो कि वो फिर उसको अपना नाम दे। ये और अलग बात है कि जैसे जंगों में या कभी इस तरह से ऐसा हुआ कि जिनके हकीकी बाप का जो है वो नहीं जैसे पता था, जैसे यानी जैसे जंगों में हो जाता है या इस तरह के मामलात में कि यानी इस तरह से कि जैसे आप यूं कह सकते हैं कि यानी थे दो सहाबा इकराम जिनको जिनका जो है वो नहीं बाप का जैसे यानी था उनके, यानी जैसे सैयदना सलमान फारसी थे और और फिर ये कि जैसे वो बताते हैं कि बचपन में ही उन्हें जो है वो गुलाम बना लिया गया था और वो खुद फरमाते हैं कि उन्हें 10 से ज्यादा मर्तबा जो है वो बेचा और खरीदा गया है। फिर इसी तरह से सैयदना सुहेब रूमी जो असल में ईरानी थे और वो भी बचपन में ही जो है वो कैद होके रूम आ गए थे। तो ये था कि अगर कोई किसी को प्यार से बेटा या बेटी कहता है या एहतराम से किसी को माँ कहता है या इसी तरह से किसी के साथ कोई रिश्ता बनाता है, तो वो एक और चीज है। लेकिन ये है कि अगर किसी को अपना नाम देना चाहते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जैसे शाद फरमाया ना कि यानी किसी इंसान के दिल में जो है वो दो दिल नहीं है, यानी ये है कि किसी शख्स की जो वालदैन हैं वो एक ही हैं, जिससे वो अल्लाह ताला ने उनको उनकी तख्लीक का अमल शुरू किया है। तो यानी ये है कि वो चाहे प्यार से किसी को बेटा या बेटी कह दे, लेकिन हकीकत में वो उनके बेटा या बेटी नहीं हो सकते। और ये बात जो है वो दीन में कहीं पे भी इसकी कोई गुंजाइश नहीं है कि वो उनको अपना नाम दें, यानी उस नाम के अलावा जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तख्लीक की बेसिस पे किसी इंसान की उसको उसका दिया है नाम। यानी इसका क्या है कि एक तो ये है कि अम, यानी मोहब्बत में भले उनको वो उनकी परवरिश करें, उनको उनके साथ वो जो भी भलाई इख्तियार करना चाहते हैं, उनको जो अच्छी तरबियत करना चाहते हैं करें, लेकिन उनके
असल वालदैन के नाम के साथ, क्योंकि बाज़ दफा ये लोग कहते हैं कि नहीं, अगर उनको ये पता चलेगा कि वो बहुत सारी यानी कॉम्प्लेक्सिटीज का कहते हैं कि नहीं, अगर ऐसा पता चल गया बच्चे को तो बच्चा वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो इसलिए हमने उनको अपना नाम दिया है। तो ये है कि अल्लाह ताला के कानून की सरीहन खिलाफ वर्जी जो है वो हमें, हमारे दीन जो है वो उसमें कहीं भी किसी भी तरह की इजाजत नहीं देता। यानी इससे इससे मुराद क्या है कि कोई शख्स जो है वो जानबूझकर जो है वो उसके बाप की जो निस्बत है उसको रिमूव करके वो अपने अपने नाम की निस्बत जो है वो उसको देना चाहता है। फिर इसी तरह से ऐसा भी नहीं है कि कोई इंडिविजुअल जो है वो अपनी जो जनरेशन है या जो अपनी जो जो उनके कबाइल हैं उनसे हटकर जो है वो जानबूझकर जो दूसरे कबीले की वो निस्बत इख्तियार करना चाहिए। जैसे आप एक एग्जांपल उसकी इस वक्त भी देखते हैं कि जैसे हमारे मुल्क में सैयद बनने का या किसी ऊंची जात के साथ जो है वो कोई ऐसी निस्बत बनाने का जो है वो बहुत रिवाज है। तो हमें ये देखने की जरूरत है कि ऐसी सूरत में फिर आम मोमिनों को जो हम हुक्म दिया जाते हैं वो यही कि वो अपनी निस्बत जो है वो इस तरह से चेंज ना करें, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो हमारे ये कबीले और कबाइल और ये जो हमें जातों के नाम जो दिए हैं वो हमारी तशखीस के लिए हैं सिर्फ, वो इसलिए नहीं है। और ये बात हम सब जानते हैं कि जो हमारा मकाम है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे तकवा की बुनियाद पर कायम करना है, वो हमारी जात या बरादरी की बुनियाद पर कायम नहीं करना। तो हमें ये बात समझने की जरूरत है कि जो शनाख्त अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हम सबको दी है, हमें उसी के ऊपर जो है वो यानी अपना मुस्तकिल रहना है और उसी को इख्तियार करना है, ना कि ये कि कोई शख्स जो है वो जानबूझकर अपने यानी अपनी शनाख्त जो है वो सिर्फ इसलिए चेंज करे कि उसको लगे कि वो इससे जो है वो ज्यादा मोतबर हो सकता है। सैयदना अबू जर रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने दूसरे शख्स को जानबूझकर अपना बाप बनाया वो काफिर हो गया, और जो शख्स जो है वो अपने तई दूसरी कौम का अपने आप को बताए तो वो फिर अपना ठिकाना जो है वो दोजख में बना ले। और ये रिवायत जो है वो हमें किताबुल मनाकिब से भी मिलती है, बुखारी से भी मिलती है। तो यानी इसका मतलब क्या है कि यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जैसे आयत नंबर 5 में इरशाद फरमाते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला कि जो ये मुंह बोले बेटे हैं इनको उनके बापों के नाम से पुकारो, क्योंकि अल्लाह ताला के यहाँ यही इंसाफ की बात है। और अगर तुम्हें उनके बापों के नाम का इल्म ना हो तो वो तुम्हारे दीनी भाई हैं और तुम्हारे दोस्त हैं। और ये कि कोई बात अगर तुम भूल चूक की बिना पर कह दो तो उस पर तुम्हारी कोई गिरफ्त नहीं होगी, मगर जो दिल के इरादे से कहो तो उस पर जरूर गिरफ्त होगी। तो यहाँ तक हमें जो बात समझ आई है वो ये है कि पहली बात तो ये कि जो जिहार है वो उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। और फिर इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो किसी की कुदरती तौर पर जिस खानदान में पैदा किया है उससे अपनी जो पैदाइश है उसका यूं कह लें कि उसकी शनाख्त को तो तब्दील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आप तब्दील नहीं कर सकते। वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो ठहराई जिसकी जो शनाख्त वो वही रहेगी। क्योंकि ये है कि अगर किसी का नाम का इल्म नहीं है किसी के बाप का, तो वो ये है कि उनको आप एक मोहब्बत का रिश्ता तो उस तरह से दे सकते हैं, लेकिन ये कि उसको औलाद की हैसियत से और अपनी निस्बत के साथ उनको जोड़ देना, तो ये दीन के आने से पहले जो हो गया सो हो गया। बट ये है कि और वो ये कि किसी किसी ने भूल चूक में कर दिया हो तो अल्लाह ताला उसको माफ कर देंगे। लेकिन ये है कि जो दिल के इरादे से किया हो, जैसे अगर हम इस वक्त भी देखें अ, यानी पहले ये था कि उस वक्त दीन की बात यानी अरब के टाइम में जब ये कफारा और इस तरह से जब ये अहकामात नाजिल हो रहे थे उससे पहले लोगों को अंदाजा नहीं था। लेकिन खासतौर पर हमारे सामने जो है वो हजरत ज़ैद बिन हारिसा की जो मिसाल है वो मौजूद है कि जिस तरह से उनको जो है वो जब ये हजरत ज़ैद बिन
हारसा को जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पास रखा और उन्होंने जिस तरह से खिदमत की, और जिस तरह से जब उनके वालिदैन आए और उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ चले, वो नहीं गए उनके साथ, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है वो जिस तरह से उनकी मोहब्बत का, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी हज़रत ज़ैद के साथ जो मोहब्बत थी वो हम सब जानते हैं। तो ये है कि और बहुत सारे लोगों ने उस वक्त ज़ैद बिन मोहब्बत कहना शुरू कर दिया, लेकिन उस वक्त तक ये आयात नाजिल नहीं हुई थी। लेकिन जब ये आयात नाजिल हो गई तो उसके बाद हमें पता है कि यानी किस तरह से फिर जो है वो अ, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और बाकी सब ने फिर जो है वो हजरत ज़ैद बिन हारिसा को उनकी अपनी शनाख्त थी उनके साथ पुकारा। तो ये है कि जैसे यानी अगर जैसे कोई अगर जैसे जंग छिड़ती है इस तरह के वाकयात में, या जैसे मुहाजिरीन जब आते हैं जंग के नतीजे में, तो अगर कोई ऐसा हो जाए तो भी ये है कि इसमें ये नहीं है कि वो वालिदैन जो हैं जिन्होंने उस बच्चे को पाला है वो उसको मतलब अपना नाम दें, या ये है कि अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किसी को औलाद की नेमत से नहीं नवाजा और उसके बाद जो है वो जब किसी बच्चे को अपनी औलाद इस तरह से बनाने लगते हैं, और ऐसे हमें अपनी सोसाइटी में बहुत सारे केसेस नजर आते हैं। तो ये कि अगर किसी को नहीं पता था, गलती हो गई, तो उसकी पकड़ नहीं है। लेकिन ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया कि जो लोग तुम लोग जो कुछ अपने दिलों के इरादे से करोगे तो उसका जरूर एहतसाब जो है वो होगा, और अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाले और निहायत रहम करने वाले हैं। तो ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो जब अहकामात इरशाद फरमाते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे भी यही हम देखते हैं कि किसी की बल्दियत जो तब्दील करना है वो हराम है। तो ये है कि हमें जो बात समझने की जरूरत है और हमें ये बात आगे भी बताने की जरूरत है, क्योंकि होता यही है कि जब हम सोसाइटी में किसी को ये बात कहने लगते हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। लोग ये कहते हैं कि जी ये हमारा और अल्लाह का मामला है, या लोग बहुत सारी जो है वो इस तरह की कोई बात करते हैं। पर ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की जो हदूद हैं वो यही है कि किसी की वल्दियत को तब्दील करना हराम है, किसी की वल्दियत को चेंज नहीं किया जा सकता, और इसी तरह से जो है वो लोग जो बच्चे हैं उनको उनके अपने वालिदैन के नाम से पुकारें। और ये जो हमने पहली आयत मुबारक आयत नंबर 4 में ये पढ़ा कि जिहाद जो है ये सिर्फ तुम्हारे मुंह की बात है और ये हक बात नहीं है, क्योंकि जिस तरह से अल्लाह ताला ने किसी भी इंसान के दिल में किसी की भी इंसान के जिस्म में दो दिल नहीं बनाए, बिल्कुल इसी तरह से उसके दो माँ या दो बाप नहीं है, उसकी माँ और बाप वही हैं जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुकर्रर किया है। तो ये तुम्हारे मुंह की बातें हैं जो तुम जो है वो खुद साख्ता घड़ लेते हो, और किसी की माँ वही है जिसने उसे जना है, और फिर ये कि किसी शख्स का बेटा भी वही है जो यानी उससे अल्लाह ताला ने उसकी जिससे पैदाइश की। तो ये कि ये जो ज़बानी दावे हैं, ये कह देना कि जी वो जैसे हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं कि लोग कहते हैं ये मेरा भाई है, ये मेरा मुंह भोला भाई है, या ये मेरा जो है वो मुंह मुंह भोला कोई भी रिश्ता बना लेते हैं, चाचा मामा, इस तरह के बहुत सारे रिश्ते बना लेते हैं। तो ये है कि असूल और हदूद वही हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे लिए मुकर्रर किए हैं, और ये वो जहालत के दौर की बातें हैं जब दीन की रोशनी हमारे सामने नहीं आई थी, और अब जबकि दीन की रोशनी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस कलाम पाक के जरिए हम तक पहुंचा दी है, तो उस वक्त हमारे लिए ये चीजें जो हैं वो करना, और ये इसका मतलब है कि फिर ये अल्लाह ताला के दीन के और अल्लाह ताला के दूत के साथ फिर जो है वो नाइंसाफी और उसके साथ जंग वाली बात है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इंसान को किसी भी किस्म की जो दानिस्ता और नादानिस्ता इस तरह की गलतियां हैं उनसे बचने की दुआ करनी चाहिए, बिकॉज ये है कि अल्लाह ताला ने जो यह हदूद नाजिल की हैं, और ये जो कवायद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बताए हैं, और ये जो अपनी जिंदगी गुजारने के जो तरीके बताए हैं, इसी में ही हमारी बेहतरी है और यही हमारे भले के लिए हैं। और अल्लाह ताला जो हमारे खालिक और मालिक हैं, अल्लाह ताला से ज्यादा बख्शने वाला, उससे ज्यादा रहीम और करीम कोई नहीं है। जिस तरह से वालिदैन अपने बच्चों का हर भला चाहते हैं और उनको एक पूरा कोड ऑफ कंडक्ट देते हैं, बिल्कुल इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने
जो तमाम कायनात का खालिक और मालिक है, जो बादशाह है, जो चाहता तो एक लम्हे में जो है वो जिसको चाहे सजा दे सकता है, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बार-बार जो है वो हमें मौका देते हैं। हम रात को सोते हैं, सुबह जब उठते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें फिर मौका देते हैं कि हम अपनी गलतियों, अपनी कोताहियों के ऊपर नज़रसानी करें। हम जिस तरह से सादिया जी ने जो हदीस मुबारका पेश की, तो उसमें भी यही था कि जो हकूकुल इबाद हैं, हम उनको देखें, तो ये हकूकुल इबाद हैं कि हम जो अपनी बीवियाँ हैं, उनके साथ हुस्न सलूक करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है हम उसको पढ़ें, हम उसको देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए रोल मॉडल थे। जिस तरह से उन्होंने हर रिश्ते को निभाया, जिस तरह से उन्होंने औलाद के साथ मोहब्बत की, जिस तरह से उन्होंने उनकी तरबियत की, जिस तरह से उन्होंने अपनी अज़वाज मुतहहरात के साथ जिस तरह से उन्होंने वो पेश आए और जिस इंसाफ के साथ वो पेश आए, तो हम ये देखें कि हमारे अंदर कितनी कोताहियाँ हैं और हमें उनको किस तरह से दूर करना है। हमें एक-दूसरे के साथ अपने ताल्लुक को किस तरह से मज़बूत करना है, क्योंकि हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद जो हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला के नज़दीक दोनों अहम है और हकूकुल इबाद इसलिए भी अहम है कि हमें ये देखना है कि अगर हमने किसी के साथ ज़्यादती कर दी, तो जब तक अ, अल्लाह ना करे कि हम हमारी तरफ से किसी के साथ ज़्यादती हो, लेकिन जब तक जिसने ज़्यादती की है, अगर उसको माफ़ नहीं किया गया, तब तक अल्लाह सुब्हानहू तआला भी उसको माफ़ नहीं करेंगे। तो ये हमें इस बात को ज़हन में रखना है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से हमें ये दुआ भी करनी है कि अल्लाह ताला हमें हकूकुल इबाद को और हकूकुल्लाह को अहसन तरीके से पूरा करने की अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए। हमें कभी हमें ऐसी कोई तौफ़ीक ना मिले कि हमारी वजह से किसी के साथ कोई ज़्यादती हो या हम किसी का कोई हक जो है वो गस्ब करें और अल्लाह ताला से हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे यहाँ पे बैठने को कबूल और मंज़ूर फ़रमाएँ। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब की तमाम जायज़ हाजात को अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको पूरा करने में हमारे लिए आसानी फ़रमाएँ। अल्लाह ताला हमें दीन की और दुनिया की कामयाबियाँ अता फ़रमाएँ। अल्लाह सुब्हानहू तआला क़यामत तक हमें अपने कलाम पाक को समझने और उसकी हक बात को आगे पहुँचाने में अल्लाह ताला हमारी मदद फ़रमाए और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अपनी अंसारियात में अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे दर्जों को बुलंद करें और अल्लाह ताला हमारे अ, हमारे कलाम पाक को हमारे लिए शफ़ाअत का ज़रिया बनाए, हमारी कब्रों की रोशनी बनाए अल्लाह ताला हमारी कब्रों को हमारे बिस्तरों से ज़्यादा जो है वो आरामदेह बनाए। अल्लाह ताला हमें हमारे गुनाहों को हमसे माफ़ फ़रमाए और अल्लाह ताला हमसे कबूल फ़रमाए जो कोशिश हम अपने रब को राज़ी करने के लिए करते हैं। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। जैसे आज मुआशरे में हमारे बहुत सारी बुराइयां चल रही हैं, उसमें एक बुराई ये भी है कि मुंह बोला बेटा या मुंह बोली माँ या मुंह बोला बाप, और हम इसकी जो संगीनी है उसको लाइट लेते हैं। तो ये सबसे पहली बात ये है कि हमारे लिए जब अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म आ जाता है तो हमें अच्छी तरह से इस चीज़ को ज़हन नशीन कर लेना चाहिए कि हमारे पास अपनी कोई मर्जी नहीं है। क्योंकि जब हमने कलमा तय्यबा, कलमा शहादत का इकरार किया है कि अल्लाह के सिवा हम किसी को माबूद नहीं मानते, अल्लाह से बढ़ के हम कोई हमारा खैर ख्वाह नहीं है, अल्लाह से बढ़ के हमसे कोई मोहब्बत करने वाला नहीं है, तो उसके जितने भी ये जो अहकामात हैं वो हमारे लिए फ़र्ज और जैसे कहते हैं ज़िंदगी और मौत का मसला है, कोई आसान चीज़ नहीं है। और ये जो बच्चे की का नाम है ना, इसमें मैं पिछले दिनों एक चीज़ सुन रही थी साइंस के हवाले से, जैसे हम लोग इसको देखते हैं तो किस तरह से यानी एक जो नुत्फा है उसकी जैसे आजकल डीएनए है उससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि यानी पहले से लेके ये सारा सिस्टम आदम अलैहिस्सलाम तक कैसे पहुंचता है और आखिरी इंसान तक कैसे पहुंचता है। ये जो आपकी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ये सारी चीजें अ, इस चीज की तरफ आज इशारा कर रही हैं कि ये जो चीजें ये आखिर तक चलती हैं और पीछे तक जाती हैं। तो जो हम अमल करते हैं वो भी पीछे तक भी जाता है और आगे तक भी जाता है नस्लों के हवाले से। तो
یہ بہت ضروری معاملہ ہے کہ ہم اس میں اگر کسی کا ایسا معاملہ ہو چکا کہ جس کو نہیں پتا تھا اور بھول چوک میں ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کرنی چاہیے. اور یہ فرائض میں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی نہ رہنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. اللہ تعالیٰ سورہ شورہ میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ملا کے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے. یعنی یہ سارے فیصلے اس کے ہیں. اور جس چیز کو اگر وہ نہیں دیتا تو ہم اس کو زبردستی حاصل کرنے کی کوشش کریں تو یہ بھی گناہ ہے. بہت سارے بچے ہیں، ان کی کفالت آپ کر سکتے ہیں، اور کفالت کر کے بھی آپ ان کا اجر کما سکتے ہیں. پھر آپ جیسے دینی تعلیمات دے کے لوگوں کو، یہ بھی اپنے لیے صدقہ جاریہ کا انتظام کر سکتے ہیں. بہرحال یہ بہت اہم نکات تھے جن کی طرف رہنمائی کی ہماری قرآن و سنت کی روشنی میں. تو اپنے معاشرے میں دیکھیں جہاں پر یہ چیز نظر آئے اس کو ٹھیک کروانے کی کوشش کریں. اور جو بچے جن کے بارے میں پتا ہو کہ جیسے کسی کے والد کا پتہ نہیں ہے، جیسے سلیمان فارسی کا تھا نا، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو کہا تھا کہ یہ اسلام کا بیٹا ہے، اسلام کا بیٹا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس کے باپ کا پتہ نہ ہو اس کے نام کے ساتھ عبداللہ لکھ دو. عبداللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کا بندہ، کسی بھی اللہ کے بندے کا ہی بیٹا ہے نا وہ. تو اس لحاظ سے یہ نام جو ہے یہ دیا جا سکتا ہے جن کے باپ کے بارے میں پتہ نہ ہو. زندگی کا سفر ہم طے کرتے جا رہے ہیں، اور اتنی زندگی ہم نے گزار دی ہے، ابھی تک ہمیں نہیں پتا پورے قرآن کے احکامات کو، یعنی سنا بھی نہیں پوری طرح سے، پڑھنا، پھر اس پہ غور و فکر کرنا، فہم جو ہے وہ کرنا. تو یہ تو بہت لمبے کام ہیں ابھی. تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ ہمارا سفر تو نزدیک لگتا جا رہا ہے، ایک لمحے کی ہمیں فکر پتہ نہیں ہے اس کا. اور بس قرآن کی محفلوں سے جڑیں زیادہ سے زیادہ. اسی میں ہماری دنیا بھی کی بھلائی بھی اسی میں ہے، کیونکہ اس وقت دنیا جس سمت جا رہی ہے، اکثریت، ہر ایک نہیں، اکثریت جو جا رہی ہے وہ غلط ڈائریکشن پہ ہم نے اپنے آپ کو موڑ لیا ہے. اس کو کریکٹ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑ لیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے ساتھ جوڑ لیں، کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو قرآن کے ساتھ جوڑ سکیں، اور بہترین صدقہ جاریہ ہم اپنے لیے قائم کر سکیں گے. کہ جب ہم جتنے لوگوں کو قرآن کے ساتھ جوڑیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کو نیکی کے راستے کی طرف یا بھلائی کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، کسی بھلائی کے عمل کی طرف رہنمائی کرتا ہے، تو وہ عمل کرنے والے کی طرح ہی اجر پاتا ہے. اگر نہیں بھی خود عمل نہیں کر سکا، کسی دوسرے کو بتایا، اس نے زیادہ اچھے طریقے سے سیکھ لیا، تو وہ اس کے لیے یعنی عمل نہ کر کے صرف بتا کے بھی صدقہ جاریہ اس کے لیے بن جاتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.